Hello guys and welcome back to my new vlog, and I hope you all are doing great, safe and sound. So today I am going to share cabin crew interview dates for the month of July 2025, and I am going to share the cabin crew interview dates starting from 1st July 2025 till 15th July 2025. Also, we are going to discuss about the eligibility criteria and about the mandatory guidelines that you have to follow whenever you are going for your cabin crew interview. And I'm going to share the cabin crew interview dates for Indigo, especially for the Indigo Airlines. Okay, so please make sure that you note down everything because I am going to explain everything in details. So without wasting any time, let's go. 1st July, it is going to be in Mumbai. 2nd July, Delhi. 3rd July, Indore. 4th July, Bagdogra. 5th July, Kolkata. 7th July, Guwahati. 8th July, Kochi. 9th July, Mumbai. 10th July, Bangalore, 11th July, Chandigarh, 14th July, Pune, and 15th July, Lucknow. So guys, I have already shared the date and the location, and if you want to know more about the timings and the venue, make sure that you comment down below and I'll be more than happy to assist you. Now we are going to discuss about the eligibility criteria, people who are eligible for the cabin crew role in Indigo Airlines, okay? So the first eligibility criteria is female Indian national. So you should be female, you should be Indian with an Indian passport. Now, if you don't have a passport, please make sure that you apply for the same because Indigo flies international as well, and you might lose that opportunity if you don't have an Indian passport. So that is why it is mandatory for you to have an Indian passport. अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई कर दो and they are going to give you a receipt. तो वो receipt आप अपने interview day पे अपने साथ carry कर सकते हो. And your age should be in between 18 to 27 years if you are applying as a fresher. Okay. Second comes your educational qualification. So a minimum of 10 plus 2 from a recognized board or university. ठीक है, so 10 plus 2 होना is mandatory, that is class 12 तक आपको आपकी एजुकेशन होनी चाहिए. एंड अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है देन दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज फॉर यू. Okay, communication fluency and clarity of speech in English as well as in Hindi, because we know why it is important, because you have to communicate with a lot of passengers on board, and English is the universal language which everyone knows and Hindi is our national language, right? तो वो चीज, ये दो लैंग्वेजेस आपको आनी ही चाहिए. इट इज मैंडेटरी फॉर यू to have a fluency in English as well as in Hindi, or clarity honi chahiye that the other person will be able to understand what you are saying. So the next eligibility criteria is height and weight. So your weight should be in proportionate to your BMI. इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. And your height should be 155 centimeters. So basically आपकी जो height है और आपका जो weight है उसके according आपका body mass index निकलता है. ठीक है, तो आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 18 टू 22 के बीच में होना चाहिए. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर इंडिगो एयरलाइंस, इंडिगो में इट इज मैंडेटरी कि आपका जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, वो 18 टू 22 के बीच में हो. ठीक है, एंड आपका मिनिमम हाइट इंडिगो में इट इज 155 सेंटीमीटर. कमिंग टू द अपीयरेंस, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड वेल ग्रूम्ड. ठीक है, वेल ग्रूम वी ऑल नो कि आपका प्रॉपर मेकअप होना चाहिए, आपका जो हेयर है वो इधर उधर से निकलने नहीं चाहिए. ठीक है, बहुत ही नीट एंड क्लीन ग्रूमिंग होनी चाहिए आपकी. एंड नो विजिबल टैटूज इन यूनिफॉर्म. सो बेसिकली वी ऑल नो कि इंडिगो का यूनिफॉर्म इमेजिन इतना स्लीव्स तो है ही है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए. यहाँ पर आपका नेक पर नहीं होना चाहिए, फेस पर कोई टैटू नहीं होना चाहिए. तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है. तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे. मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. यू शुड बी इंडियन फीमेल नेशनल्स. ठीक है, आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए. एज आपका होना चाहिए 18 टू 27 के बीच में. एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए मिनिमम 12th क्लास, मतलब मिनिमम 12th पास, प्लस आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, देन दैट इज गोइंग टू बी एन एडेड एडवांटेज फॉर यू. कम्युनिकेशन इज मैंडेटरी बिकॉज यू हैव टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी. प्लस आप जब भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसमें क्लैरिटी होना चाहिए. उसके बाद हाइट आपकी होनी चाहिए मिनिमम 155 सेंटीमीटर्स एंड योर वेट शुड बी इन प्रोपोर्शनेट टू योर हाइट. दैट इज आपका जो बीएमआई है वो होना चाहिए इन बिटवीन 18 टू 22. अपीयरेंस में आ गया है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, एटीट्यूड में नहीं घूमना है. ठीक है, वो हम दूसरे लोगों के सामने दिखा सकते हैं बट यहाँ पर नहीं. ठीक है, सो यू शुड हैव अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड यू शुड बी वेरी वेरी वेल ग्रूम. नो विजिबल टैटूज इन यूनिफॉर्म. तो अगर कोई ऐसा टैटू वैटू है तो प्लीज आप लेजर करवा दो उसको, और इफ यू कैन हाइड इट विद मेकअप तो प्लीज आप उसको अच्छे से कंसील करके जाना, अच्छे से मेकअप से हाइड करके जाना. इट शुड नॉट बी विजिबल. ओके, नाउ पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर द कैबिन क्रू इंटरव्यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जो फ्रेशर्स है जिन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, दे
आर अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उनके माइंड में बहुत बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, क्या हमारा अटायर होना चाहिए, कैसा मेकअप होना चाहिए, कैसे हेयर होना चाहिए, सब कुछ बहुत सारे डाउट्स होते हैं। सो इन लोगों ने क्या किया ना, इन लोगों ने इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको मैंडेटरी गाइडलाइंस का एक वो दिखेगा कॉलम, तो उसमें ना इन लोगों ने सब कुछ मेंशन किया है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, सो दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक। सो द फर्स्ट वन इज यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड एंड हैव कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 18 to 27 का आपका एज होना चाहिए, ठीक है, इफ यू आर अप्लाइंग एज अ फ्रेशर। तो ऐसा नहीं है कि आप 17 ईयर्स के हो गए और आप इंटरव्यू के लिए चले गए, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द सेम। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपको पूरा पता होना चाहिए, देन ओनली यू कम फॉर द इंटरव्यू। देन यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट द कैबिन क्रू प्रोफाइल एंड द कंपनी ऑन द डे ऑफ योर असेसमेंट। तो ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिस भी रोल के लिए आप अप्लाई करते हो उसके उस रोल के बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ऑल्सो अबाउट द कंपनी, कि कंपनी कैसे काम कर रही है, क्या है, तो थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। देन इन लोगों ने मेंशन किया है कि ड्रेस कोड जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए हाफ स्लीव शर्ट प्लस नी लेंथ वेल फिटेड स्कर्ट विद ब्लैक स्टॉकिंग। कॉलर्ड शर्ट होना चाहिए आपका, कुछ भी आपको क्रॉप टॉप वगैरह पहन के नहीं जाना है। एंड जो स्कर्ट है वो आपकी नी लेंथ होनी चाहिए, वेल फिटेड, ठीक है, पूरा आपका नी कवर होना चाहिए। आप लोग को ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनना है, कोई भी न्यूड कलर का स्टॉकिंग नहीं पहनना है। तो आप जैसे पिंक शर्ट ले सकते हो और ब्लैक स्कर्ट ले सकते हो, उसके नीचे आप ब्लैक स्टॉकिंग्स पहन सकते हो। सो ये इन लोगों ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। कोई भी दूसरी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आपको नहीं पहननी, जैसे थंब रिंग हो गया, ये आपको नहीं पहनना है। वॉच आप पहन सकते हो, फिर ऐसे पर्ल वाइट इयररिंग्स पहन सकते हो, कोई भी छोटे से स्टड पहन सकते हो आप। देन यू मस्ट कैरी 2 पासपोर्ट साइज फोटोज। तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना है, प्लस सॉफ्ट कॉपी अलॉन्ग विद 1 प्रिंटेड कॉपी ऑफ अपडेटेड रेज्यूमे। तो एक प्रिंटेड रेज्यूमे आपको लेके जाना है, अपने साथ में कैरी करना है, प्लस 2 पासपोर्ट साइज फोटो and photocopies of 10th and 12th mark sheet from a recognized board or university। तो ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिस्कस किया था, दैट यू हैव टू कैरी योर 10th and 12th मार्क शीट। तो उसकी आपको प्रिंटेड फोटोकॉपी लेके जानी है, उसको आपका जो ओरिजिनल है वो नहीं लेके जानी। देन आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड पासपोर्ट। तो ये कुछ 4-5 चीजें जो आपको लेके जानी। फर्स्ट हो गया आपका पासपोर्ट साइज फोटो प्लस सॉफ्ट कॉपी, तो दोनों कॉपीज लेके जाना, विद 1 प्रिंटेड कॉपी ऑफ अपडेटेड रेज्यूमे। तो दूसरा हो गया आपका रेज्यूमे। थर्ड हो गया आपको फोटोकॉपीज लेके जानी क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट की, प्लस पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड पासपोर्ट। सो 4-5 चीजें आपको कैरी करनी है। यू मस्ट मेंशन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटरव्यू, एज, हाइट, वेट एंड द एप्लीकेशन आईडी इफ यू आर अप्लाइंग ऑनलाइन ऑन द टॉप ऑफ योर रेज्यूमे। तो ये सब चीजें आपको मेंशन करनी है, ठीक है, कि आपको आपका एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है। टॉप ऑफ रेज्यूमे में आपको ये सब मेंशन नहीं करना है। टॉप ऑफ रेज्यूमे में आपको सिर्फ ये मेंशन करना है कि आपका एप्लीकेशन आईडी क्या है। सो इफ यू आर अप्लाइंग ऑनलाइन, अभी जो मैंने आपको जितने भी इंटरव्यूज बताए वो सारे वॉक इन इंटरव्यूज है, यू डोंट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। बट अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो आपको रेज्यूमे, आपका जो सीवी होगा उसके टॉप पे आपको अपना एप्लीकेशन आईडी मेंशन करना है। The passport size picture of the candidate should be duly stamped on the top of your resume। तो साइड में आपको ना छोटा सा जो अपना पासपोर्ट साइज फोटो है, कलर्ड नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, वो आपको स्टेपल करना है, ठीक है, रेज्यूमे के एकदम टॉप पे लेफ्ट साइड में। देन ओनली द कैंडिडेट्स आर अलाउड एट द असेसमेंट लोकेशन। तो जहां पर इंटरव्यू होगा वहां पर सिर्फ अगर आपका इंटरव्यू तो आपको जाना है, आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स किसी को भी साथ में नहीं लेके जाओगे। देन द असेसमेंट में extend to a full day process, so you should be fully prepared for the same। so बहुत बार क्या होता है ना, इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि पूरा दिन चला जाता है इंटरव्यू कंप्लीट करने में। तो इसमें पूरा दिन का भी ये प्रोसेस हो सकता है। डोंट थिंक कि इट विल बी जस्ट 1 hour ऑफ इंटरव्यू और मे बी 2 hours इट विल टेक, इट माइट टेक द फुल डे। so be mentally prepared for the same, carry your water bottles, food and snacks and everything with you, okay। Then the body mass index requirement for this job profile is 18 to 22, which we have already discussed, okay। your height and weight will be checked on the day of interview and only on complete fitment you will be forwarded to the next round। so basically आपको अपनी हाइट और अपने वेट का ध्यान रखना है। तो आपको पता होना चाहिए आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, अकॉर्डिंगली आपका बीएमआई निकलेगा। आपका बीएमआई होना चाहिए 18 to 22 के बीच में। अगर आपका बीएमआई 18 to 22 के बीच में आता है तभी वो लोग आपको नेक्स्ट राउंड के लिए आगे प्रोसीड करने देंगे, अदरवाइज दे विल आस्क यू टू लूज सम वेट और मे बी टू गेन सम वेट अकॉर्डिंग टू योर बीएमआई, ओके। सो यही मेंशन है।
Post selection you will have to be in Gurgaon for 3 months approximately of training. So as we all are aware, इसके जो headquarters है इंडिगो के वो गुड़गांव में है, तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 3 months की होगी, अप्रोक्सीमेटली 3 months तो लगता ही है उसमें, ठीक है. सो फॉर 3 months ऑफ योर ट्रेनिंग यू हैव टू बी इन गुड़गांव, ठीक है. And you have to clear all DGC examinations required to fetch a flying license before being relocated to your respective bases. So basically वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो DGCA के थ्रू कंडक्ट होते हैं, तो आप जब सारे एग्जाम्स अपने क्लियर कर लोगे देन यू विल गेट योर फ्लाइंग लाइसेंस, और लाइसेंस मिलने के बाद ही आपको जो बेस लोकेशन है, जिस भी बेस के लिए आपने अप्लाई किया है, जो भी आपका बेस लोकेशन होगा वहां आपको भेजेंगे. तो आपको सिर्फ अभी इतना ध्यान रखना है कि 3 months का आपका ट्रेनिंग होगा जहां पर आपके सारे एग्जाम्स होंगे और आपको गुड़गांव में ही रहना है, ठीक है, स्पेशली फॉर 3 months. ये सारी जो चीजें थी ये सारी फ्रेशर्स के लिए थी. अब एक्सपीरियंस क्रू की बात कर रहे हैं. एक्सपीरियंस क्रू भी वो नहीं जो दूसरे एयरलाइन में वर्क करता है, उसके लिए नहीं. पीपल हु हैव ऑलरेडी वर्कड विद इंडिगो इन एनी ऑफ द डिपार्टमेंट्स, ठीक है, एंड देन दे हैव रिजाइंड और टर्मिनेट कर दिया या वॉट एवर द रीजंस वर, उन लोगों के लिए जो ये प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. Any candidate who have previously worked with Indigo or any other interglobe company is requested to share their updated CV on hiring.support@goindigo.in with the subject line IGA-rehire application. ठीक है. So people who have already worked with Indigo. For example, अगर मैंने इंडिगो में काम किया है, then I resign because of my personal reason or whatever it can be. I resign. Now I want to apply back. I want to join Indigo again. तो उसका प्रोसेस ये है कि आपको अपना जो अपडेटेड सीवी है वो आपको शेयर करना है इस मेल आईडी पे जो मैं यहाँ कहीं मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है. दैट इज hiring.support@goindigo.in. आपको सब्जेक्ट लाइन लिखना है इसमें IGA, जो भी आपका IGA, वट एवर योर IGA 79301 मे बी डैश रीहायर एप्लीकेशन. तो वो दोनों मैं यहाँ शेयर कर दूंगी, आपको जिस मेल आईडी पे करना है और जो आपको सब्जेक्ट लाइन लिखना है, ठीक है. प्लीज नोट दैट वी विल गेट बैक टू यू विद इन 10 days ऑफ रिसीविंग सच एन एप्लीकेशन. तो जैसे ही उनको आपका एप्लीकेशन मिलेगा विद इन 10 days में वो लोग आपको रिवर्ट करेंगे. The candidate must not come for the walk-in interview process without confirmation of rehire. तो बेसिकली अगर आपने इंडिगो में काम किया है तो आपको ऐसे ही आपको जो मेल आईडी उस पर आपको अपना अपडेटेड सीवी भेजना है. उसके बाद विद इन 10 days दे आर गोइंग टू रिवर्ट. तो आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप वॉक इन के लिए गए भी हो उस इंटरव्यू के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हो. तो अकॉर्डिंगली वो लोग आपको बताएंगे कि आपका सीवी जो है वो शॉर्टलिस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है. और अगर आपने इस प्रोसेस में नहीं भेजा है, जो मैंने आपको सब्जेक्ट लाइन बताया, आपको मेल आईडी बताया, आपने अपने मन से कुछ भी उनको भेज दिया, देन दे आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट. ये क्लियरली इन लोगों ने मेंशन किया है. If selected, we expect you to be open to the idea of relocation. Indigo has many offices all over the country. However, the hiring is done on the basis of the availability and requirement of the company. ठीक है. तो you should be open to relocation. आप उनको ये नहीं बोल सकते कि मेरा होम टाउन बॉम्बे में है so I want बॉम्बे बेस. ऐसा नहीं हो सकता है. वो जहां पर भी अवेलेबिलिटी होगी, जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगा, वही वाला बेस वो आप लोग को देने वाले. ठीक है. So guys, we have already discussed about the eligibility criteria plus mandatory guidelines, dates and the locations and everything in detail. Still, if you have any doubts, please make sure that you comment down below. Don't hesitate. अगर कोई छोटा मोटा डाउट भी है जो आपको लगता है कि आपको नहीं पता है, तो प्लीज आप लोग क्लियर कर लेना, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप लोग वहाँ इंटरव्यू में जाके कंफ्यूज हो जाओ और नर्वस हो जाओ कि यार ये चीज तो हमें पता नहीं थी. तो कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट्स में लिख देना, ठीक है. एंड डोंट गेट स्कैर्ड व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू. मे बी आपका फर्स्ट राउंड होगा, मे बी आपका फर्स्ट टाइम होगा इंटरव्यू, एंड एवरीवन विल गेट नर्वस, एवरीवन विल बी स्कैर्ड. But just give your 100%, believe in yourself, take a deep breath and be confident. जब आप confident रहते हो तो वो आपके personality में show करता है, ठीक है. So please make sure that you smile throughout your interview, ठीक है. अगर आप smile करोगे तो आपका एक positivity आपकी बाहर आती है, वो reflect होता है that you have a very positive body language. So keep smiling throughout your interview, ठीक है. Greet everyone. मतलब वहां पर अगर आपका इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है भी तो आपको एक्सट्रोवर्ट बनना है, ठीक है. यू आर नॉट सपोज टू बी इंट्रोवर्ट, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट भी नहीं बनना है, एक्सट्रोवर्ट रहना है, ठीक है. ग्रीट्स करना है, स्माइल करना है, एंड डोंट टॉक टू मच विद दी अदर कैंडिडेट्स, बिकॉज वी ऑल नो हाउ गर्ल्स आर, राइट. अगर उनको लगता है ना कि अगर आपका सिलेक्शन हो सकता है तो वो लोग आपको ऐसा आपको मैनिपुलेट करेंगे, और दे आर गोइंग टू टेल यू दैट यू नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, और मैंने तो बहुत बार इंटरव्यू दिया है, आई वर्क विद दैट एयरलाइन, आई वर्क विद दिस एयरलाइन. सो प्लीज डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप. जो भी आपने प्रिपेयर किया है, जितना भी आपने प्रिपेयर किया है, अपने आप पर ट्रस्ट करना.
and I am 100% sure you are going to make it. When I started my journey as a cabin crew, I got rejected 12 times. ये मैंने कभी बताया नहीं है, but I've got rejected for like 12 times, and I have cried a lot, but I did not give up. Trust me, this is the job that is worth fighting for. I have been working with Indigo from past 7 years, and I don't feel like I can do any other job. So please go for the interview, give your 100%, and believe in God, believe in destiny. You are going to get what you want, and believe in your dreams, okay? And don't give up. So that's all for today, and thank you so much for watching the video till the end. I hope I've been able to share everything in detail. Still, if you have any doubts, please make sure that you comment down below.